Good morning, students. Welcome in Social Science virtual class. How are you? I hope all of you will be fine. Dear students, do your work wholeheartedly, regularly. Keep on revising your syllabus. It will help you to get better results and better understanding. Dear students, today we will continue chapter 5 of civics, that is judiciary. In previous virtual class we have discussed judiciary play an important role to resolve the dispute between citizen and state government, between state governments and also between state government and सेंट्रल गवर्नमेंट. आपस में लोगों का झगड़ा हो जाए तो जुडिशरी उसको भी रिजोल्व करती है. टू स्टेट्स में झगड़ा हो जाए जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में रिवर के वाटर को लेके, उसे भी कौन रिजोल्व करता है, सोल्व करता है, जुडिशरी रिजोल्व करती है. एंड जुडिशरी आल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन विच थिंग जुडिशियल रिव्यू. आर जुडिशरी इज द final interpreter of the constitution. If any law passed by the parliament, if judiciary believes that it is not according to the constitution, judiciary can cancel it and can amend the constitution. उसे ठीक भी कर सकती है, उसमें चेंजेस भी कर सकती है जुडिशरी, और उसे कैंसल भी कर सकती है. And we know judiciary play important role to maintain law and order in the society. Student, our judiciary is independent. What is the meaning of independent? हमने ये भी डिस्कस किया था. Judiciary is not working under the government. Legislator and executive cannot interfere in the work of judiciary. That's why judiciary play an important role to ensure there is a no misuse of power by the legislator and the executive. Student, हमने ये भी डिस्कस किया था what is the structure of courts in India. In our country there are several courts at lower level and one court at the apex level, and at the top level there is a one court. Students, so we know कि we are having 28 states. Each state has a high court, but sometime some states sharing their high court, like Punjab and Haryana have a common high court. इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, ये इन तीनों का जो इन 4 स्टेट्स का जो हमारा हाई कोर्ट है कहाँ पर है, गुवाहाटी में है. ठीक है. इसका स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिज़ोरम हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट द गुवाहाटी. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव देयर सेपरेट कोर्ट फ्रॉम 1st January 2019. Andhra Pradesh is having its high court at Amravati, and Telangana's high court lies in Hyderabad. Student, our courts are integrated. What is the meaning of integrated? They are related to each other. Yes, they are related to each other. We have an integrated judicial system, meaning that the decision made by high court are binding on the lower courts. And integration of our court is also understood by appellate system. Appellate system का क्या मतलब है? It means a person can appeal to higher court. A person can appeal to higher court if they believe that the judgment पास बाय दी लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्टिस. कि अगर किसी को ये लगता है कि जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने दी है वो ठीक नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता है उस जजमेंट के अगेंस्ट में. तो इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है?
और अपील सिस्टम क्या है, कैसे लोअर कोर्ट से हम सिटीजन्स हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं स्टूडेंट। इसे समझने के लिए हम एक केस को ट्रैक करते हैं। दिस इज अ केस स्टेट वेस्ट लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। किस तरह से लोअर कोर्ट से ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इन February 1980 लक्ष्मण कुमार की मैरिज होती है सुधा कोयल से। दे लिव्ड इन अ फ्लैट दिल्ली विद लक्ष्मण्स ब्रदर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। वो अदर फैमिली के साथ दिल्ली में ही रहते हैं। बट ऑन 2 December 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न। 2 December 1980 में, उसे ये फरवरी में मैरिज हुई और 2 December को उसकी डेथ भी हो जाती है बिकॉज ऑफ बर्न, की जलने से डेथ होती है। हर फैमिली फाइल्ड द केस, हर फैमिली filed a case in the court, or when this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called in as a witness. They stated that उनके 4 नेबर्स को बुलाया गया गवाही के लिए कोर्ट में। उन्होंने कहा कि 1 December 1980 को उन्होंने सुधा के रोने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो उसके घर गए और उन्होंने वहाँ जाकर क्या देखा कि सुधा की साड़ी में आग लगी हुई है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। तब उन्होंने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला, उसको रैप किया, उसकी आग को बुझाया। वहाँ व्हाट वाज हैपन, तब सुधा ने उन्हें बताया कि उनकी मदर इन लॉ शकुंतला ने उस पर किरोसिन ऑयल डाला और हर हस्बैंड लिट दी फायर। आग किसने लगाई, उसके हस्बैंड ने लगाई। ड्यूरिंग द ट्रायल, जब कोर्ट में केस चला, गवाही के लिए बुलाया गया तो फैमिली मेम्बर्स ने और नेबर्स ने क्या बताया, सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉज दैट दे वर डिमांडिंग मोर कैश, अ स्कूटर एंड अ फ्रीज ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। उससे डोरी में, दहेज में डिमांड कर रहे थे कि फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ पर उन्हें कैश भी चाहिए, स्कूटर भी चाहिए और फ्रीज भी चाहिए। As a part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating the milk. सुधा के हस्बैंड और मदर इन लॉ ये कहती हैं कि सुधा तो दूध गर्म कर रही थी, अचानक से उसकी साड़ी में आग लग गई जिसकी वजह से वो जली। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंसेस, ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण and his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra, sentenced all 3 of them to death. जब कोर्ट ने, जज ने इन सब गवाहों को सुना तो लक्ष्मण, उसकी मदर और उसके ब्रदर को उम्र कैद की सज़ा दे दी। उन्हें कहा कि टिल डेथ दे रिमेन्ड इन दी जेल। इन November 1983 व्हाट वाज हैपेंड आफ्टर 3 years, ये तीनों अक्यूज जिन्हें सज़ा मिली हुई थी हाई कोर्ट में अपील करते हैं अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ ट्रायल कोर्ट। वर्डिक्ट मैंने जजमेंट, जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दी थी उसके अगेंस्ट कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट सो दे अपील्ड इन द हायर कोर्ट। आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑल लॉयर्स डिसाइडेड दैट Sudha had died due to an accident fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala, Subhash Chandra were acquitted. पर हाई कोर्ट ने क्या दिया कि लक्ष्मण की जब सब गवाहों को सुना, लॉयर्स की बहस को सुना, उसके बाद उन्होंने जजमेंट दी कि सुधा की साड़ी में तो अचानक से आग लग गई थी, इसलिए लक्ष्मण, शकुंतला और उसके ब्रदर निर्दोष है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इन 1985 में क्या हुआ, इन द 1985 सुप्रीम कोर्ट heard this appeal against the acquittal of Lakshman and 2 members of his family. सुधा के पेरेंट्स ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि जिन्होंने हमारी बेटी को मारा है, जलाया है, वो फ्री घूम रही है सोसाइटी में,
तो उन्होंने कहा कि दोबारा से इस केस को देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट heard the argument of the lawyers and reached a decision that was different from the high court। हमने देखा कि लोअर कोर्ट में तीनों को डेथ तक कहाँ डाल दिया गया था, जेल में, की उम्र कैद दे दिया गया था, पर हाई कोर्ट ने तीनों को निर्दोष जानकर उन्हें छोड़ दिया। पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को दोबारा से सुना, दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidences against him। सुप्रीम कोर्ट ने पाया लक्ष्मण और उसकी मदर की गलती है, उन्होंने ही सुधा को जलाया था, पर लक्ष्मण के ब्रदर के अगेंस्ट, सुभाष चंद्र के अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्र को रिहा कर दिया, दोनों को उम्र कैद दे दी, लक्ष्मण और उसकी मदर शकुंतला को, और सुभाष को रिहा कर दिया। तो स्टूडेंट हमने देखा किस तरह से पहले लोअर कोर्ट में केस गया, तीनों को सजा दी गई, फिर तीनों एक्यूज ने, लक्ष्मण उसकी मदर ने जब अपील की तो हाई कोर्ट ने तीनों को इनोसेंट मानकर, निर्दोष मानकर जजमेंट के गवाहों के बेस पर रिहा कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मदर को उम्र कैद की सज़ा दी और सुभाष चंद्र को छोड़ दिया गया। स्टूडेंट, ये जो हमने केस किया, डिस्कस किया, डोरी का था, दहेज का था, किसी भी लड़की से ये कहना कि अपने पेरेंट्स से दहेज लेके आओ, ये गलत है। दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट दी सोसाइटी। जब पेरेंट्स ने बच्चे को पढ़ा दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, तो पेरेंट्स से पैसे की डिमांड करना, फ्रिज की डिमांड करना, स्कूटर की डिमांड करना, ये गलत है। दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट दी सोसाइटी। तो ये किस में आता है स्टूडेंट्स? क्रिमिनल लॉ में आता है डोरी का केस। तो स्टूडेंट, केस कितनी तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ क्या है? क्रिमिनल लॉ स्टूडेंट्स deals with the act that law defines as offense. For example, theft, harassing a woman to bring more dowry and murder। कि अगर ये जो है इट इज़ अ क्राइम, ये क्राइम है, एक्ट दैट लॉ डिफाइंस एन ऑफेंस, चोरी करना, मर्डर करना, या किसी को हरास करना, उससे पैसे की डिमांड करना, वाइफ को कहना कि पैसे लेके आओ, स्कूटर लेके आओ, फ्रिज लेके आओ, हरासिंग अ वुमन टू ब्रिंग मोर डोरी। सो दीज आर क्राइम अगेंस्ट दी सोसाइटी। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, अगर कोई इस तरह का क्राइम होता है तो फर्स्ट थिंग इट इज़ यूजली बिगिन विद लॉन्जिंग एन FIR विद द पुलिस स्टेशन। पहले पुलिस स्टेशन में FIR कराई जाती है, हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम, आफ्टर विच द केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिसाइड करती है कोर्ट को फाइल करने के लिए। देन इफ़ फाउंड गिल्टी द एक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइंड। अगर कोर्ट ये के पास सबूत होते हैं तो वो एक्यूज़ को, जिसने गलती किया, अपराध किया, उसे जेल में भी भेज सकती है और फाइन, दोनों भी हो सकते हैं। व्हाट इज सिविल लॉ? स्टूडेंट्स, सिविल लॉ डील्स विद एनी हार्म, इंजरी, राइट टू द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स एंड डाइवोर्स केसेस। ये किस में आते हैं? अगर किसी के राइट्स लिए गए हैं, जैसे लैंड को लेकर कोई झगड़ा हो गया, डाइवोर्स का केस है, किसी सामान की खरीदारी को हमने कोई सामान लिया और उसमें मिलावट है, तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर विच केस स्टूडेंट? सिविल लॉ। अ पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी। जिसका नुकसान हुआ है, जिसके राइट्स का वायोलेशन हुआ है, वो केस फाइल्ड करेगा रेलिवेंट कोर्ट में। इन अ मैटर ऑफ रेंट, आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल द केस।
अगर किराएदार का को लेकर कोई झगड़ा है तो मकान मालिक भी केस फाइल कर सकता है और किराएदार भी कर सकता है। और courts give specific relief asked for it. For instance, in a case between a landlord and a tenant, court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. अगर कोर्ट को लगेगा कि मकान मालिक ठीक है तो वो किराएदार को मकान खाली करने के लिए, फ्लैट खाली करने के लिए कहेगा और साथ ये भी कहेगा कि जो आपका पेंडिंग ड्यूज हैं, जो रेंट है, वो आप लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को दे दीजिए। स्टूडेंट जैसे यहाँ दिया गया, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर परसिस्टेंटली हरास्ड बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ व्हाइल वॉकिंग टू स्कूल। कुछ गर्ल्स जब स्कूल जाती हैं तो कुछ लड़के रास्ते में उन्हें तंग करते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये किसके अंडर आएगा, सिविल लॉ या क्रिमिनल? स्टूडेंट्स, इट्स कम अंडर द क्रिमिनल लॉ। तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट केस फाइल्ड इन दी पुलिस, देन पुलिस विल डू द इन्वेस्टिगेशन। अगर गलती होगी, अगर वो प्रूव हो जाता है कि यस बॉयज़ गलत कर रही हैं, होगा ही, तो दे विल गेट द पनिशमेंट बाय द जज। देन अ टेनेंट हु इज़ बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल्स अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। अगर एक किराएदार केस फाइल करता है मकान मालिक के अगेंस्ट, तो ये किस में आएगा, सिविल केस में आएगा। और पेटिशंस फाइल कहाँ की जाएगी, सिविल कोर्ट में की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया क्रिमिनल लॉ क्या है और सिविल लॉ क्या है। क्रिमिनल लॉ जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, चोरी, मर्डर, ये सब किस में आता है, क्रिमिनल लॉ में। डाइवोर्स, सेल एंड परचेज ऑफ अ गुड, अगर इसमें कोई डिस्प्यूट है, दे कम अंडर सिविल लॉ। स्टूडेंट, इन आवर कंट्री डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? क्या सभी की कोर्ट तक पहुँच है? यस, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। इट मीन्स एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट। हर सिटीज़न के पास राइट है कोर्ट में जाकर जस्टिस लेने का। इफ़ एनी सिटीज़न बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, दे कैन अप्रोच दी कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। अगर किसी को लगता है कि उसके राइट्स का वायलेशन हुए, जो मिलने चाहिए नहीं मिले, वो कोर्ट्स में जाकर अपना केस फाइल कर सकता है और अपने राइट्स को ले सकता है। While the courts are available for all, in reality, access to court has always been difficult for vast majority of poor in India. Access तो है पर स्टूडेंट्स पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि it needs lot of money, paper work, lot of time. अगर कोई पुअर फैमिली से है, मज़दूर है, अगर किसी ने उसको मजदूरी नहीं दी, अगर वो केस फाइल करता है तो उसे एक दिन का काम छोड़ना पड़ेगा, टाइम भी लगाना पड़ेगा। अगर उसको अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए वो डिपेंड करता है अपने डेली वेजेस पर, तो कोर्ट जाने का मतलब होगा स्टूडेंट कि उस दिन वो कमाई नहीं कर पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पुअर लोग तो जाएंगे नहीं, जाते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था जो नुकसान हुआ सो हुआ, अगर अब गए तो आज का भी हमारा गुजारा कैसे चलेगा। पर स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। कैसे? इट स्टार्टेड इन 1980, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज स्टार्टेड टू इंक्रीज द एक्सेस टू जस्टिस। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल or organization to file PIL, public interest litigation, in High Court or Supreme Court on the behalf of those whose rights are being violated. PIL क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टेलीग्राम करके, लेटर करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है कि उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है। फिर उसके बाद उसे कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम अपने आप से गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। तो स्टूडेंट,
इट इज़ इसी के कारण ही बिहार में कुछ बॉन्डेड लेबर थे। बॉन्डेड लेबर क्या होते हैं कि उन्होंने कुछ मनी लेंडर से ली और वो कई सालों से उसका काम कर रहे हैं फ्री में, और थोड़ा बहुत उन्हें पैसे दिए जाते हैं कि उनका गुजारा चल पाए। उन्हें, उनके आगे बच्चों को, सभी को काम में लगा रखा है। पर ये गलत है, क्योंकि कुछ समय के बाद जो पेमेंट ली थी उसके हिसाब से ये नहीं कि वो भी उनकी मजदूरी करेंगे, उनके बच्चे भी करेंगे, उनके आगे नेक्स्ट जनरेशन भी करेगी, तो ये गलत है। इसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। तो उनको रिलीज़ कराया गया। बिहार में कुछ प्रिजनर्स, कुछ कैदी थे, उनकी जेल का समय ख़त्म हो चुका था, उनकी पनिशमेंट ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी उन्हें जेल में ही थे। उन्हें रिहा करवाया गया, उन्हें रिलीज़ कराया गया। और स्टूडेंट्स, आपने मिड डे मील का नाम सुना ही होगा। जो मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ये भी स्टूडेंट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कारण ही स्टार्ट हुआ। कैसे? इन 2001 राजस्थान एंड उड़ीसा मीन द मिलियंस फेस्ड अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से वहाँ अनाज पैदा नहीं हुआ। और जब गवर्नमेंट को कहा गया कि इनकी हेल्प की जाए, तो गवर्नमेंट सेड कि हमारे पास फंड्स नहीं है। सो व्हाट वाज, एक तरफ तो स्टूडेंट्स राजस्थान गुजरात में गोडाउन्स भरे पड़े थे और उन्हें रैट्स खा रहे थे उस ग्रेन्स को, और दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे थे। तो इट स्टेटेड दैट फंडामेंटल राइट टू लाइफ ग्रांटेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे फंडामेंटल जो राइट है, राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 दिया गया है, सबको जीने का अधिकार है। इट इंक्लूड्स राइट टू लाइफ, राइट टू फूड। सो व्हाट वाज आस्क्ड इट व्हेन state government said they did not have to help the people, it was said कि you are having grains in the godowns, give to the poor people and also give them work and so provide employment and provide food through ration डिपो के उससे कम प्राइजेस पर पुअर लोगों को फूड दिया जाए। स्टूडेंट, हमने देखा भी है जो गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पुअर बच्चों लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें दोपहर का खाना फ्री दिया जाता है, फीस भी नहीं ली जाती है उनसे। तो ये जो मिड डे मील का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कारण। इसी तरह से स्टूडेंट, जजमेंट ऑफ द ओलेगा टेलिस वेस्ट बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। बॉम्बे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जगह थी स्टूडेंट, वहाँ पर पार्लियामेंट में कुछ स्लम एरिया के लोग वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते थे, सामान को बेचते थे, क्योंकि उनके पास इतना फंड्स नहीं थे कि वो अपनी शॉप स्टार्ट कर सकें, अपना बिजनेस अलग से। थोड़े से पैसे से जो पार्लियामेंट होता है जहाँ पर लोग पैदल चलते हैं, वहाँ पर अपना सामान बेचकर अपना गुजारा करते थे। पर जब कुछ लोगों ने कहा कि पैदल चलने का रास्ता इन्हें यहाँ से हटाया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ ग्रांटेड इन आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट ग्रांटेड राइट टू लाइफ। अगर उनसे उनकी लाइवलीहुड, उनसे कमाने रोजगार ले लिया जाएगा, तो हाउ दे विल मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ। जब वो कमाएंगे नहीं, उनके पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है, तो कैसे वो जी पाएंगे? या तो उन्हें कोई अलग जगह दी जाए, नहीं तो थोड़े से पैसे से जो ये काम कर रहे हैं वो इन्हें यहाँ से हटा नहीं सकते। स्टूडेंट, ये हमने क्या अभी डिस्कस किया कि हमारे यहाँ जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टार्ट किया गया, किस लिए? टू इंक्रीज द एक्सेस टू जस्टिस टू ऑल दी पीपल, कि सब लोग जस्टिस ले पाएँ। पर एक और क्या दिक्कत है कि सब जस्टिस नहीं ले पाते। आर कोर्ट टेक्स लॉन्गर ईयर्स टू गिव द जजमेंट। इतना टाइम लगता है जजमेंट देने में कि लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे के फादर की एक्सीडेंट के कारण, जब वो 3 साल का था, डेथ हुई और उसको 30 इयर्स के बाद जजमेंट मिलती है, जब उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसकी नौकरी लग गई, तो फिर उस समय जब
अगर कंपनसेशन का पैसा उस समय मिला तो कहा भी जाता है ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। देर से न्याय हुआ तो क्या न्याय हुआ, यहाँ पर भी स्टूडेंट दिखाया गया। 20 मई 1987 को 43 मुस्लिम्स को कुछ पुलिस वालों ने उसको मार दिया था और उनकी फैमिली ने प्रोटेस्ट किया और कोर्ट फाइल किया। 31 इयर्स लगे उनको जस्टिस लेने में। सितंबर 2087 में उनकी डेथ हुई थी। सितंबर 2000 में 20 इयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उत्तर प्रदेश से ये केस शिफ्ट करके दिल्ली कोर्ट में इसको शिफ्ट कर दिया गया और इन्हें जस्टिस मिला 31 अक्टूबर 2018 को, आफ्टर 31 इयर्स। स्टूडेंट, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने जस्टिस को लेने के लिए, पर इतनी देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी से न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो हमारा स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उतनी नहीं है, जितनी सीट रखी गई है उससे उनकी अपॉइंटमेंट कम की गई है। और सरकार ने लोक अदालत भी स्टार्ट की है कि लोगों को जस्टिस मिले। और स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जुडिशरी काम करती है। टुडे वी डिस्कस जुडिशरी प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल to give justice to the people, to resolve the dispute between citizen, between government and citizen, establish law and order in the society। और हमने डिस्कस किया हमारी जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, इट इज़ नॉट वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ जुडिशरी। That this independence of judiciary ensure to control there is a no misuse of power by legislator and executive in the country। यही जुडिशरी है जो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है जो उन्हें एलो करती है कि लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव कोई अगर गलत काम करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन ले पाए। और हमने ये भी डिस्कस किया स्टूडेंट, in our country at lower level there are many courts, district courts, each state has a high court, and also at the apex level we are having supreme court। हर स्टेट का हाई कोर्ट तो है, but some state are sharing their high courts, like Punjab and Haryana have their high court at Chandigarh। in our country we are having total 25 high courts। So students, read the lesson, do worksheet in your 13 in your notebook and send this work to on your assigned day। Students, keep on revising your syllabus, stay at home, stay healthy। Thank you students, have a nice day।